Hello students, in this lecture we are going to discuss the practical questions on mutual funds, the calculation of NAV, the calculation of return to investor on mutual funds and the expense ratio calculations. So I'll be discussing some illustrations from your book by Dr. R.P. Rustagi. So let's begin with illustration number 8.1. It says the NAV of an equity scheme of a mutual fund was 12 rupees 50 paisa in the beginning of the year. The mutual fund has distributed a dividend of rupees 1.30 per unit during the year and has an NAV of 12 rupees 80 paisa at the end of the year. Find out the percentage return of the mutual fund. So you have to find out the return which the mutual fund holder will get. In the beginning you are given the NAV, in the end you are given the, so he is holding the unit for 1 year during the and has an NAV of 12 rupees 80 paisa at the end of the year. So beginning and ending NAV is given to you, which we call as NAV 1 and NAV 0. So this is NAV 0 at the beginning and this is NAV 1, right? And you're given that during the year it distributed a dividend of 1 rupee 30 paisa per unit. So this the mutual fund unit holder would have got. So finding out his return, first of all we'll take this dividend payment. If you remember the formula we discussed in the last class, see, for calculation of the annual return, percentage return of a mutual fund holder, we add dividend plus if any capital gain which has been distributed to the investor and the difference between the opening and the closing NAV divided by the opening NAV at which he invested the money, multiply by 100. So using this formula we have dividend here, we have NAV 1 and NAV 0 here. So no capital gain has been distributed by the mutual fund. So we are adding the dividend 1.30 plus NAV 1 12 rupees 80 paisa minus NAV 0. So 30 पैसा तो उसके NAV में इंक्रीज हुआ प्लस 1 रुपी 30 पैसा उसको एज डिविडेंड मिला, इतना उसको टोटल मिला एंड डिवाइडेड बाय जो उसकी कॉस्ट थी द NAV एट विच ही बॉट द यूनिट्स 12.50 NAV 0 multiply by 100, it gives 12.8% return. So this is the percentage return of the mutual fund over this 1 year. Right? Now let's move on to the next illustration. Again it is also based on calculation of return. A mutual fund has an NAV of rupees 20.10 paisa in the beginning of the month. It distributed a return of rupees 4 paisa and capital gain of 10 paisa during the month. The NAV at the end of the month was same at 20.10 paisa. Find out the monthly rate of रिटर्न. सो एक मंथ की बात हो रही है कि मंथ की बिगनिंग में NAV था, मंथ के एंड में NAV, एंड वो बिगनिंग और एंडिंग NAV आर सेम, दे आर अनचेंज. NAV में इंक्रीज नहीं हुआ तो चेंज इन NAV से उसको रिटर्न नहीं मिलेगा. बट उसको रिटर्न कैसे मिला इन्वेस्टर को? जो म्यूचुअल फंड है इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज़ नॉट रुपी बट 4 पैसा एज डिविडेंड एंड 10 पैसा एज कैपिटल गेन्स. सो ये दोनों उसको मिले हैं तो हम डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन विच हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस हम करते हैं NAV 1 माइनस 0 जो कि कोई डिफरेंस है नहीं, वो 0 ही है तो नील है तो इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया है. डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द कॉस्ट, दिस NAV 0. सो 20 रुपीज़ 10 पैसा इन्वेस्ट किया था उसने जिस पे उसको रिटर्न उस मंथ का 14 पैसा मिला. सो 14 पैसा डिवाइडेड बाय 20 रुपीज़ 10 पैसा इज़ 0.7% का उसे return mila over this 1 month. Right? I hope it is clear. The calculation of return. So
आपको क्या क्या दिया हो सकता है, डिविडेंड दिया हो सकता है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द म्यूचुअल फंड दिया हो सकता है, और डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग, दैट इज बिगिनिंग एंड द एंडिंग, NAV दिया हो सकता है. This is how you calculate the return to the mutual fund unit holder. Now, next we'll do illustration on calculation of NAV, that is net asset value. So, illustration 8.3 says, following information is available in respect of a mutual fund. What all information? Cash and bank balance. 5,50,000 rupees cash है या bank balance with the mutual fund. Bond and debentures unlisted 7 lakh, equities whose current market value is given as 12,50,000, quoted government securities 10,05,000, expenses accrued 75,000, number of units outstanding 2 lakh. We have to find out the NAV per unit, right? NAV is always per unit. So net asset value, उसके net assets क्या हैं म्यूचुअल फंड के पास, तो उसके पहले एसेट्स देख लेते हैं, माइनस एनी लाइबिलिटीज, राइट, और एक्सपेंसेस, दैट विल गिव अस द नेट एसेट्स विद द म्यूचुअल फंड, एंड देन वील डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग विच विल गिव अस द NAV पर यूनिट. सो द फॉर्मूला विच वी डिस्कस्ड was like this: NAV is equal to value of securities, the current value of securities with the mutual fund, minus the liabilities if any, divided by number of units outstanding. So what is the value of securities or assets with the mutual fund? What all assets are there? Cash and bank balance is also an asset with the mutual fund. So 5,50,000 उनके पास कैश है अभी, बॉन्ड एंड डिबेंचर 7 लाख के, इक्विटीज जिसकी करंट, वी ऑलवेज टेक द करंट प्राइस, द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, सो 12,50,000, कोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो टोटल एसेट्स जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू है ये 35,05,000, लेस एक्सपेंसेस 75,000 के, तो ये आपकी लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस हो गए. These are the net assets with the mutual fund, 34,30,000. Now number of units outstanding is 2 lakh. It's given in the question. So dividing 34,30,000 by 2 lakh will give us the NAV per unit. These are the net assets with the mutual fund. 2 लाख यूनिट्स उन्होंने इशू किए, तो हर यूनिट को कितना बिलोंग करता है नेट एसेट, 17 रुपीज़ 15 पैसा. So this is the calculation of NAV per unit. Value, the realizable value of all the assets minus liabilities, and whole divided by the number of units outstanding. Now, the next question on calculation of NAV. This is not that simple. So let's look at it. Mutual fund made an issue of 10 lakh units of rupees 10 each on 1st January 2006. So number of units आपको दी हुई है 10 लाख, और इशू कितने में किया था, 10 रुपये में, तो कितना फंड आ गया होगा उसके पास. ठीक है, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेंगे. नो एंट्री लोड वॉज चार्ज्ड. ठीक है, तो इतना ही मनी कलेक्ट हुआ होगा, 10 इंटू 10 लाख. इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स. अब ये जो मनी रिसीव हुआ, राइट, इस मनी से उसने, म्यूचुअल फंड ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स की. सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स इट मेड. 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 160. तो उसने 160 में खरीदे, ये फेस वैल्यू होगी इक्विटी शेयर्स की, बट उसने कितने में खरीदे, 1,60,000 में 50,000 इक्विटी शेयर्स. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 160, ये उसकी कॉस्ट रही. 80 लाख रुपीज़ की तो इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए. नेक्स्ट 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 8 लाख रुपीज़ की. 9% डिबेंचर्स विच वर अनलिस्टेड, 9% इंटरेस्ट रेट वाले डिबेंचर्स अनलिस्टेड 5 लाख वर्थ रुपीज़ के, एंड 5 लाख के लिस्टेड डिबेंचर्स कैरिंग 10% इंटरेस्ट रेट. सो दीज वर द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द म्यूचुअल फंड, अ टोटल ऑफ 98 लाख रुपीज़. राइट, रिसीव किया था 1 करोड़ रुपीज़, 10 लाख इंटू 10,
इन्वेस्ट किया उसमें से 98 लाख रुपीज़, दैट मीन्स 2 लाख अभी अनइन्वेस्टेड होगा एज अ कैश या बैंक बैलेंस म्यूचुअल फंड के पास होगा. नाउ ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स. तो म्यूचुअल फंड को मिला है, ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है. म्यूचुअल फंड को 12 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ है. ये जो इक्विटी शेयर्स खरीदे थे उनसे 12 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ म्यूचुअल फंड को, बिकॉज म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की थी. इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज वॉज रिसीव्ड एज एंड वेन ड्यू. सो ये सब 7%, 9% और 10% ऑन देयर फेस वैल्यू, दीज इंटरेस्ट वर ऑल्सो रिसीव्ड बाय द म्यूचुअल फंड. At the end of the year, the equity shares and 10% debentures, यानी कि ये वाले listed debentures की बात कर रहे हैं. Equity shares and listed debentures are quoted at 175% and 90% respectively. What does this mean? They are quoted at this means उनका market price जो है at the end of the year is they are quoted in the market at 175% and 90% of their face value. ठीक है, जब हम इस तरह से परसेंटेज टर्म्स में बता रहे हैं तो हम उनकी फेस वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी फेस वैल्यू का 175% पे कोट हुआ था, 90% पे कोट हुआ था शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो डिबेंचर्स 5 लाख के हैं तो 90% पे कोट हुए, मतलब कि 4,50,000 उनका रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस था एट द एंड ऑफ द ईयर. सिमिलरली शेयर्स 100 रुपीज़ ईच के हैं, 175% अगर हम करें तो एक तरह से 175 रुपीज़ हो गया. तो हर शेयर 175 रुपीज़ का कोट हुआ था एट द एंड ऑफ द ईयर. परचेज किया था उसने 160 का, बट एंड में कोट हो रहा था वो 175 का. तो मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू निकाल सकते हैं हम इससे इक्विटी शेयर्स की और डिबेंचर्स की. नेक्स्ट इट सेज फाइंड आउट द NAV पर यूनिट given that operating expenses paid during the year amounted to rupees 5 lakh. So ये उसके expenses या liabilities हो गई कि operating expenses ने पे किए हैं 5 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड ने. अभी हम इतना क्वेश्चन करते हैं बिकॉज उसके बाद वो एक सेपरेट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. ऑल्सो फाइंड आउट द NAV इफ म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ 80 पैसा ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर्स. अभी हम इसे इग्नोर करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं. जब तक उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसे रिसीव हुआ है डिविडेंड, राइट. सो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह से सब कुछ रेडी नहीं दिया है कि ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटी हैं और इतने यूनिट्स हैं. आपको निकालने होंगे. सबसे पहले हमने यहाँ से मिसिंग फिगर एक एसेट की निकाली विच वॉज 2 लाख रुपीज़ ऑफ कैश. तो जब आपको इस तरह से दे रखा है कि इतना रिसीव हुआ एंड उतने रिसीव्ड अमाउंट में से ये हमने इन्वेस्टमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि कुछ बचा तो नहीं है. तो यहाँ पे हमने देखा कि कैश इन हैंड बचा है 2 लाख रुपीज़ का. सो एक तो ये हो गया उसका एसेट. उसके बाद क्या क्या इनकम्स रिसीव हुई, ठीक है, वो उससे भी हम कैश निकालेंगे कि उसके पास कैश एक्चुअली बचा कितना. ये तो बिगनिंग में 2 लाख रुपीज़ का कैश उसके पास था. उसके बाद उसे रिसीव भी हुआ कैश एंड कुछ खर्चा भी हुआ, तो कैश कितना बच गया. बिकॉज कैश इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एसेट इन द हैंड ऑफ म्यूचुअल फंड. जब हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, नेट एसेट्स, तो कैश इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ दैट. बाकी सब एसेट्स ये हैं उसके एट देयर रियलाइजेबल वैल्यूज, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द कैश बैलेंस. सो कैश बैलेंस निकालने के लिए एट द एंड, अब हम NAV जब निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर निकाल रहे हैं, तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर उन एसेट्स की क्या वैल्यू है वो निकालनी है, राइट. एक तरह से बैलेंस शीट में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमें निकालना है. सो कैश इन द बिगिनिंग वॉज 100 लाख माइनस 98 लाख विच वॉज 2 लाख. ठीक है, तो ये तो उसके पास बिगिनिंग में था कैश. देन डिविडेंड रिसीव्ड 12 लाख रुपीज़ का डिविडेंड रिसीव हुआ, ऐड कर देते हैं, इतना कैश इंक्रीज़ हो गया. और उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तीनों सिक्योरिटीज़ पे, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ पे. तो हमने फेस वैल्यू जो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में उनके ऊपर 7%, 9% और 10% रिस्पेक्टिवली निकाला. तो 56,000, 45,000 एंड 50,000. ये देखेंगे आप. 7% ऑफ 8 लाख दैट इज़ 56,000, 9% ऑफ 5 lakh that is 45,000
एंड 10% ऑफ 5 लाख दैट इज़ 50,000। इस तरह से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया इन तीनों सिक्योरिटीज़ का। सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड। टोटल कैश कितना हो गया उसके पास, 15,51,000 म्यूचुअल फंड के पास इतना कैश हो गया एट द एंड, माइनस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इट हैज़ पेड आउट ऑफ द कैश। सो 5 लाख रुपीज़ उसने एक्सपेंस पे किया, तो बच गया उसके पास कैश 10,51,000. So an asset in the form of cash with the mutual fund at the end of the year is 10,51,000. Now let's calculate the NAV. तो NAV में पहला हमने एसेट लिया कैश जो हमने निकाला है 10,51,000, बाकी जो भी उसकी सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी शेयर्स हैं और 3 उसके पास फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं। तो हमें 2 सिक्योरिटीज़ के इक्विटी शेयर का और लिस्टेड जो डिबेंचर्स हैं उनकी तो मार्केट वैल्यू दी हुई है, बाकी सबकी नहीं दी हुई, तो दैट मीन्स उनकी हम पार वैल्यू ही लेकर चलेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स, इनकी मार्केट वैल्यू 175% पे कोट हो रही है। तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 175 हम लिख देंगे 87,50,000, राइट। हम ये रियलाइजेबल वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे। देन अनदर मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ था ये 10% डिबेंचर्स का विच आर कोटेड एट 90%। सो 5 लाख का 90% हमने कैलकुलेट किया। 10% डिबेंचर्स के केस में एट द रेट ऑफ 90% ये हो गया 4,50,000 कैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बच गई आपकी बाकी दोनों सिक्योरिटीज़, तो दे विल बी एट देयर पार वैल्यूज़। जिस वैल्यू पे हमने खरीदी थी उसी वैल्यू पे ही आज उनकी रियलाइजेबल वैल्यू है। सो 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 8 लाख एंड 9% डिबेंचर्स अनलिस्टेड 5 लाख। सो ये हमारे एसेट्स एज इट इज़ हैं। सो ये भी हम 8 लाख और 5 लाख यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये 4 हमारी सिक्योरिटीज़ हुई और ये हमारा कैश हुआ। टोटल एसेट्स विद द म्यूचुअल फंड इज़ 1,15,51,000, राइट। सो ये होगा टोटल एसेट्स, जिसमें से हम ऑलरेडी वो जो एक्सपेंसेस थे वो माइनस कर चुके हैं। लाइबिलिटीज़ कैश में से ही हमने ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। अगर आपने वहाँ नहीं किया होता तो आप यहाँ पे कर सकते थे। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस टोटल एसेट्स और इवन द नेट एसेट्स विद द म्यूचुअल फंड, नाउ वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सो एज टू गेट द नेट NAV पर यूनिट। सो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर बिगिनिंग में दैट इट इशूड 10 लाख यूनिट्स ऑफ फॉर 10 ईच। तो 10 लाख यूनिट्स है, तो हमने 10 लाख यूनिट से डिवाइड किया एंड वी गेट 10 रुपीज़ 75 पैसा। नो, यहाँ पर हैं हम, टोटल एसेट्स हमारे 1,15,51 थे, उनको 10 लाख से डिवाइड किया तो हमारा NAV आया 11 रुपीज़ 55 पैसा। सो दिस इज़ द NAV per unit for the first part of the question, right? Now let's read the second part. It says also find out the NAV if the mutual fund has distributed a dividend of 80 paisa during the year to the यूनिट होल्डर्स। यही सेम क्वेश्चन, बट अगर म्यूचुअल फंड ने 80 पैसा का डिविडेंड यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया होता, हर यूनिट होल्डर को 80 पैसा का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता ड्यूरिंग द ईयर, तो NAV कितना होता। यहाँ पे हम रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम NAV की बात कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे कि म्यूचुअल फंड के पास कितने नेट एसेट्स बचे हैं और फिर उनको यूनिट होल्डर्स, नंबर ऑफ़ यूनिट होल्डर्स से डिवाइड करके NAV निकालते हैं हम। अगर म्यूचुअल फंड ने 80 पैसा पर यूनिट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता तो उसके पास कैश कम हो जाता। सो वो हम निकालेंगे यहाँ पर, राइट। अगर डिविडेंड 80 पैसा पर यूनिट का दिया गया है और हमारे पास यूनिट्स कितनी है 10 लाख, तो टोटल हमने डिविडेंड कितना पे कर दिया होता, म्यूचुअल फंड ने यूनिट होल्डर्स को कितना पास ऑन कर दिया होता डिविडेंड, 8 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो कैश उसके पास था पूरा, उसको रिसीव हुआ था डिविडेंड 12 लाख का, और उसकी वजह से उसके पास कैश एट द एंड बच रहा था इतना। अब अगर उसने इसमें से
80,000 रुपीज़ 8 लाख रुपीज़ का अगर डिविडेंड दे दिया है तो उसके पास कैश यहाँ से आप 8 लाख माइनस कर देंगे, सो 2,51,000 का बच जाएगा। और फिर ये पूरी कैलकुलेशंस करेंगे, या फिर आप नेट ही निकाल सकते हैं जैसे इन्होंने किया है कि नेट एसेट्स जो हैं हमारे अदरवाइज 1,15,51,000 हैं, अब नेट एसेट्स जो है वो 8 लाख से कम बच जाएंगे बिकॉज कैश थोड़ा कम बचेगा 8 लाख से। सो डायरेक्टली हमने नेट एसेट्स निकाल लिए यहाँ पर, जो कि 8 लाख रुपीज़ कम हो जाएंगे ड्यू टू रिडक्शन इन द कैश विद द म्यूचुअल फंड ने 8 लाख जब यूनिट होल्डर्स को दे दिए तो उसके पास 8 लाख कम बचेंगे, तो ये बचेगा नेट एसेट्स विद द म्यूचुअल फंड, जिसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करके NAV पर यूनिट निकालेंगे, 10 रुपीज़ 75 पैसा। आप कंफ्यूज ना होइएगा, दैट रिटर्न 80 पैसा का जब हम रिटर्न इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर कैलकुलेट करते थे, अभी भी जब यूनिट होल्डर के हाथ में अगर हमें रिटर्न कैलकुलेट करना होगा तब हम वहाँ पे देखेंगे कि उसको 80 पैसा तो पहले मिल चुका है, प्लस NAV इन द बिगिनिंग इतना था, एंड इतना था, और इस तरह से उसका हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब हम NAV कैलकुलेट कर रहे हैं तब उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि नेट एसेट्स विद द म्यूचुअल फंड कितने हैं, उसके पास कैश कितना है, और बाकी जो वो सिक्योरिटीज़ उसके पास इन्वेस्टेड हैं उनकी वैल्यू क्या है आज की डेट में, और डिवाइड करते हैं उससे नंबर ऑफ यूनिट से। सो क्योंकि उसने 8 लाख रुपए का डिविडेंड पे कर दिया है, इतना कम उसके एसेट्स हो गए हैं, राइट। नाउ डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन, illustration 8.5, which is on the calculation of expense ratio. A mutual fund has an NAV of rupees 50 and rupees 70 in the beginning and at the end of the period respectively. तो NAV in the beginning 50 रुपये, at the end 70 रुपये है। During the period it incurred expenses at the rate of rupees 5 per unit, right? तो पूरे साल में या फिर जो भी पीरियड है उस पीरियड में उसने 5 रुपीज़ का एक्सपेंसेस इनकर किए। फाइंड आउट द एक्सपेंस रेशो। सो इफ़ यू रिमेंबर द एक्सपेंस रेशो फॉर्मूला विच वी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर, एक्सपेंस रेशो इज इक्वल टू टोटल एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम अगर म्यूचुअल फंड की ओवरऑल बात करते तो उसके टोटल जो एक्सपेंसेस हुए थे लैक्स ऑफ रुपीज़ में या जितने भी, डिवाइडेड बाय जो उसका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था, वो उसका हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, राइट। हेयर इन दिस क्वेश्चन आपको पर यूनिट दिया हुआ है, दोनों ही चीज़ें पर यूनिट दी हुई हैं। एक्सपेंसेस भी 5 रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है और NAV दिया हुआ है। AUM टोटल नहीं दिया हुआ पूरे म्यूचुअल फंड का बिगनिंग और एंडिंग में, बट पर यूनिट ही दिया हुआ है। AUM पर यूनिट इज NAV, राइट। तो ये भी पर यूनिट दिया हुआ है, ये भी पर यूनिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली पर यूनिट की टर्म्स में निकाल लेते हैं, बिकॉज परसेंटेज टर्म्स में एक्सपेंस रेशो तो फिर भी वही आएगा, वरना यूनिट्स दिए होते तो हम इसको भी मल्टीप्लाई बाय दैट करते और इसको भी मल्टीप्लाई बाय दैट करते नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल निकालने के लिए। अब हमें दोनों चीज़ें पर यूनिट दी हुई हैं तो हम इन्हें एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम यूनिट्स में हैं, ठीक है। So expense ratio will be expenses upon average asset multiplied by 100. Expense per unit is 5 and assets per unit average के लिए opening plus closing divide by 2. So opening NAV plus closing NAV divide by 2. So 60 rupees on an average है NAV, या हम कहें assets, average assets, और expenses कितने हैं 5 per unit multiply by 100. So it gives you 8.33% is the expense ratio. Expenses are 8%, 8.33% of the average assets. So this is how we calculate the expense ratio. चाहे वो दोनों चीज़ें per unit में दी हो या वो total दिया हो for the mutual fund, total expenses or total AUM, right? This is how we can calculate it in simple. There's another illustration, but that is not related to any of these expense, NAV or the return calculation. So you can leave that. This is not for BCom program, I hope. So I hope these simple practical questions are clear to you. You can practice more of such questions from the unsolved ones, right? Do practice them.
टेक केयर। थैंक यू।